digital marketing and vast, and then I shifted to IT. Like it's a very like complex and but interesting story. But if you see passion एक चीज़ होती है, ठीक है. Passion is one thing and job is one thing. People nowadays, if you ask anyone, for example, if you go into the society, people will ask you to achieve your goals more rather than taking the passion job. Or once we get married and all these things, there is a lot of dependence on financial stability. Wanted to check my knowledge. Okay. If I whatever I am studying is it asked in the interview? Is it correct? Where I am going? या मेरे को कुछ और improve करना है? There is something missing. तो AI इतना नहीं है impact करेगा, but yeah, you have to स्किल अप योर वॉट एवर द स्किल सेट्स यू आर डूइंग, लाइक उसको स्किल अप करना ही पड़ेगा, राइट. ये अपस्किलिंग के बारे में बहुत बात करते रहते हैं. वन सो थिंग्स रिसेंटली JP Morgan कंपनी भी बोला है कि इफ समवन एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर बिफोर देयर टेन्योर पीरियड और दे आर एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर बिफोर 2 years दे विल बी टर्मिनेटेड समथिंग. सो 3 months नोटिस पीरियड. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? कैसे डील करना है? आई डोंट वांट टू गो दिल्ली गुड़गांव, तो मैं यही करता हूँ, पहले दिल्ली गुड़गांव के इंटरव्यू देता हूँ, वहाँ से होता है कुछ रिजेक्शन होता है, कुछ जहाँ पे सिलेक्शन होता है. देखो आपको ऐसा होना चाहिए कल मेरा ले ऑफ हुआ था, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक. I think by this time I think audience will analyze, skill set is more important than any other thing else. As you have mentioned, you came from filmography, the passion out of it. Hello everyone, welcome to SIT. Today I am having my best friend. His name is Saurabh Prajapati. So he's having 6 years of experience as QA engineer. Guys, today's podcast is going to be very fun and very interesting, guys. We'll hear a lot of things from him. Okay, so are you ready for the podcast? Yep. Yeah, hello Saurabh. How are you? Hi Aslam. So how things are going on, Saurabh? ऑल गुड. अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है विजय माल्या की बात पॉडकास्ट देखने के बाद मेरे को बुलाया है. नहीं, तुम विजय माल्या की बात मत करो. उसका पॉडकास्ट देखने के बाद से लग रहा है कि मतलब इतना शरीफ बंदा और कोई दुनिया में हो नहीं सकता. मैं तो उसको पैसे निकाल के देने वाला था, इतना ऐसा लग रहा था. So how things are like? कैसा चल रहा है? All good. I am working currently in IT and everything is going well. फिलहाल बढ़िया है सब कुछ. Let's see और क्या हो सकता है. So when you said like everything is fine in IT, but I heard earlier you're not into from IT background, isn't it? My story is very interesting. Like I am from arts background. I was a filmmaking journalism student, mass communication student. Then I turned into digital marketing and vast, and then I shifted to IT. Like it's a very like complex and but interesting story. बट इफ़ यू सी ऐसे होता है ना, जैसे लोग क्या करते हैं, पैशन एक चीज़ होती है, ठीक है. पैशन इज़ वन थिंग एंड जॉब इज़ वन थिंग. People nowadays, if you ask anyone, for example, if you go into the society, people will ask you to achieve your goals more rather than taking the passion jobs. What do you think about it? See what happens, like passion jobs are good, like but it pays little bit less. ठीक है. अब आपको like ऐसा नहीं है, depends. आपकी किस्मत अच्छी हो. But yeah, अगर आज मैं देखता कि आज मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ या फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, तो आज भी मैं वहीं पे होता. और आज लाइक IT में मूव होने के बाद थोड़ा लाइफ में थोड़ा स्टेबल है, सब चीज़ें अच्छी है, पैसा है, सब कुछ है, थोड़ा ठीक चल रहा है लाइफ, तो दैट्स गुड. लाइक अगर वो होता तो थोड़ा गरीबी रह जाता, तो वो वाला सीन है. तो मतलब क्या, मतलब कोई बंदा सिंगर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो क्या लगता है कि मतलब अगर पैशन वाला जॉब कर पाएगा तो उतना एक्सेल नहीं कर पाएगा? डिपेंड्स है उसकी स्किल सेट्स पे. अगर वो उसमें ज़्यादा ही पैशन है और उसके लिए लड़ना चाहता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको उसमें खुशी मिलती है, ठीक है. अभी देखो बाद में कुछ, मैं भी पहले ऐसे ही था, मेरे को लगता था कि यार सबसे बड़ी खुशी वही होता है इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन. बट आफ्टर सम इयर्स और समथिंग, व्हेन आई यूज्ड टू सी माय क्लासमेट्स, आई यूज्ड टू सी माय लाइक कलीग्स हु आर वर्किंग इन द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल, I used to get holiday on 15th August, 26th January, Saturday, Sunday and all, and they are working in journalism. Like they used to go to Ask the Republic and all, and they were like, यार देखो छुट्टियाँ मिल रही है, आराम से सोया हुआ है, मजे कर रहा है, and we have to go on the 15th August, Diwali and all. We can't celebrate with my family and all. So I was like, that's the beauty of IT. Okay. See, ऐसा होता है ना कि for example, even I love, I'm fond of music and all, पर इतना स्किल सेट नहीं है मेरे पास कि मतलब मैं जाके कॉम्पिटिटिव हो सकूं या अपने पैशन को हासिल कर सकूं. सो आई वाज रियली थिंकिंग ओके, ये एंटरटेनमेंट पर्पस ठीक है, लाइक आई कैन एंजॉय माई लाइफ फॉर सम पार्ट ऑफ द टाइम, सम पीरियड ऑफ द टाइम, बट लेटर मेरे गोल इज टू बी इन IT, एक सीरियस वाला जॉब ले, जैसे सोसाइटी चाहती है बेसिकली वैसा. ऑब्वियसली या करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, जैसे आपने बताया कि सोसाइटी जो है हमेशा क्रिएटिव फील्ड्स को ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिएटिव फील्ड को ज़्यादा इंकरेज करती है. ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ. लाइक मेरे घर वालों से मैं लड़ा रहा था कि आई वांटेड टू मास कम्युनिकेशन, बट दे वर लाइक नो, यू हैव टू लाइक
I belong to Maharashtra and Rajasthan, right? Okay. So वहाँ पे हर एक घर में you will get engineer. So they were like do bachelor of engineering, कुछ something ऐसा कर ले तो सही रहेगा या something. मैंने fight किया. तो मेरे लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट था, बट हाँ आजकल शायद दे आर जस्ट लाइक सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रंस एंड ऑल, दैट्स गुड थिंग. बट या लाइक माय पेरेंट्स ऑलवेज फोकस्ड ऑन समथिंग कि हाँ लाइक इंजीनियरिंग कर लो या समथिंग गुड कर लो. बट फिर मेरा ही था कि नहीं, मेरे को थोड़ा पैशन फॉलो करना है. तो मैंने कुछ साल उसमें काम भी किया. आई वाज आरजे इन लाइक 98.3 FM. देन या आई वाज लाइक इंटर्न, आई वाज रिपोर्टर इन लाइक ABP न्यूज़ ऑल्सो. ये सब करने के बाद आई turned into as like IT guy. Like how, like initially you were into filmography background, you went RJ, फिर उसके बाद तुमने couple of things किए. Then how ये transformation कैसा हुआ तुम्हारा IT में? इसका बहुत अच्छी interesting story. If you know, like I just passed out like when there was corona. Okay. So what happened that time कि my parents said like कि जॉब कैसे करना कि भाई घर पे रह सके या समथिंग वर्क फ्रॉम होम टाइप या कुछ ऐसा. इतना डर था उस टाइम माहौल. और मुझे जॉब मिल रही थी लाइक ABP न्यूज़, ABP माजा और समथिंग वेयर वी हैव टू गो देयर राइट इन जर्नलिज्म. सो आई वाज लाइक कि हाँ घर वाले सही कह रहे हैं. तो उस टाइम मैंने थोड़ा कोर्स किया एंड देन आई शिफ्टेड टू डिजिटल मार्केटिंग. देन आई स्टार्टेड माय करियर. आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग. लाइक आई वर्कड इन वन ऑफ द पुणे लाइक मिड स्केल IT कंपनी. तो वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ लाइक वेयर आई यूज्ड टू वर्क इन एवरी लाइक डोमेन. लाइक आई यूज्ड to work like with developer and tester and even BA and all these things. So I got some knowledge from everyone. ठीक है. तो ऐसे मैं सीखते रहा सबसे. तो फिर क्या हुआ कि मैं एक बार like testing वेस्टिंग भी करता था, but I didn't know like I am doing like functional testing or something because I was more into digital marketing part or I used to find the issues and all these things, right? तो क्या होता था कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि तेरे कम्युनिकेशन तो अच्छी है, सब कुछ ठीक ही है, तो फिर क्यों IT में ट्राई नहीं करता कि करना है तो थोड़ा टेस्टर, मैनुअल टेस्टर कर. और मेरे को ऐसा था कि भाई कोडिंग, IT मतलब कोडिंग. आई वाज लाइक भाई कोडिंग तो मेरे से नहीं होगी, ये सब चीज़ें वो अपने नहीं होगा. सो ही वाज लाइक IT मतलब कोडिंग ही नहीं होता, बहुत चीज़ें होती है. देन ही इंट्रोड्यूस टू कि भाई मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट करो, फंक्शनल टेस्टिंग से स्टार्ट करो, देयर इज़ नो कोडिंग एंड ऑल. देन आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं. सो मैंने उसका कोर्स किया. फिर खुदा ना खास्ता मेरे को फिर Deloitte से ऑफर आया. आई क्रैक Deloitte, Cognizant, Infosys, Wipro in that 2021-22. That was a good year and then that's how I entered into IT. But हाँ एक है कि you have to be like give 100% whatever you are doing. So I have given my 6 months to the IT when I was learning. It was not like कि हाँ मैंने किया छोड़ दिया और मेरा ऐसा था कि करना है तो करना ही है, घुसूंगा कैसे भी करके. I was not focusing on the packages and all. I want to be into IT anyhow. Then Deloitte was something where from I got entry. Got it. तो जैसे तुमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव सीन मेनी जॉब्स इन द स्पेशली इन द पैंडेमिक सिचुएशंस, यू नो लाइक एवरीवन स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट आई कुड सी देयर इज लाइक IT was something which was literally comparatively stable actually. If you see many of the shops were closed and many other things, you know, business of not running properly, real estates, everything fell down. But I could see the IT is the only field where people were little bit stabilized when compared to the other jobs. They were the only one who were doing the jobs on right time and they were getting the paid on right time, because once we get married and all these things, there is a lot of dependence on financial stability. I agree with you. I have very interesting किस्सा for this. Like one of my friend was in Mumbai that time, like जब कोरोना हुआ था तब he was into like banking sector and all these things. और वहाँ पे उसका फिर you know right कि कोरोना में क्या हुआ था, and he was having loan and all in like मुंबई के मीरा रोड पे उसने फ्लैट वेट ले रखा था 80 लाख का, और फिर एक साथ जॉब जाना. तो उस टाइम इतना था कि आई वॉज डूइंग IT जॉब, वो सेफ था, वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, पैसा भले ही ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं मिला था, बट सेफली वी यूज टू गेट लाइक सैलरी ऑन टाइम, राइट, इतना था. एंड इफ दैट टाइम ओनली आई स्विच इनटू लाइक Deloitte. सो दैट वाज द बूम पीरियड ऑफ IT कि जहाँ पे आई वॉज गेटिंग मैनी कॉल, इवन पीपल वर स्विचिंग टू द IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग लाइक दे वर लर्निंग समथिंग. लाइक कोरोना वाज द टाइम वेयर लाइक वी वर डेवलपिंग द स्किल्स. आई हैव लर्न जावास्क्रिप्ट एंड अदर थिंग्स एंड देन दैट्स हाउ आई स्विच टू IT. तो उस टाइम था कि कॉल्स ज़्यादा मिल रहे थे, अभी भी होता है. तो ऐसा नहीं है कि हाँ लाइक दूसरे फील्ड से इसमें थोड़ा लाइक स्टेबल है. लाइक जो लोग डरते हैं हाँ उनको थोड़ा हो सकता है, बट मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा. कॉल्स आते रहते हैं. इट डिपेंड्स, जस्ट यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स एवरी टाइम. या So why there is a myth, you know, whenever we talk about IT, or you know, जैसे किसी को बोलता हूँ कि IT में आना है क्या, IT में इंटरेस्टेड हो, people start talking about, you know, नहीं इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें कोडिंग होगा, इसमें एनालिटिक्स वजह से पार्ट हो जाएगा, तो सबको डर रहता है. ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे लोगों को, why there is a myth that IT is all about coding?
दैट लाइक वो तो मेरे को भी था, जब मेरे को मेरे दोस्त ने बोला यू जस्ट गो इनटू आईटी एंड ऑल, यू लाइक एवरीथिंग इज गुड, आई वाज लाइक यार कोडिंग कौन करेगा, लाइक कौन इतना रात तक जाएगा, वो होता है ना कि अपने सामने सिर्फ आईटी मींस कोडिंग होता है, तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था. बट व्हेन आई गॉट इनटू आईटी देन आई रिसर्च अबाउट द आईटी कोर्सेज एंड ऑल, लाइक मेरे को पता लगा देयर इज लाइक बीए का कोर्स है दैट्स नॉन कोडिंग राइट, देन उसके बाद लाइक टेस्टर फंक्शनल टेस्टर हो गया दैट्स नॉन कोडिंग, देयर आर मेनी अदर कोर्सेज आर देयर इन आईटी व्हिच इज नॉन कोडिंग, वहां से एंट्री ले सकते हो. कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये लोगों का मीत है क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते, उनका ऐसा ही होता है आईटी मींस कोडिंग, हम कोडिंग ही कर रहे हैं. बट हाँ, लाइक you have to be like there is both the part like non-coding and coding, whatever you have to choose according to your skills you can go. Especially so if I come to like business analyst also, most of the people will be saying like most of the people will ask these questions, is SQL is necessary or what we say is Power BI is necessary and all, so is a technical knowledge necessary for BA. So guys, there are some BAs are the techno-functional BAs and it's functional BAs. So for example, I'm saying like 80% of the jobs which I've seen as per the market alone, if you see the job seeking portals, 80% of the jobs we have for functional BAs where literally coding is not required, Power BI tools are not required. I'm not saying the requirement is not there for Power BI and SQL and other things. They all are project specific. Yeah, obviously. So in the market, if we compare, so 20% of the jobs I feel that they are there for techno-functional BAs and 80% still we go for the core functional BAs job, where the requirement with people are collecting and gathering. So it's the lack of awareness among the people which I feel that they are not doing proper research. That is the reason IT related to coding is because of lack of awareness. Just they should have like basic knowledge of like whatever the like what is SQL and how it works in the project and all, like सिर्फ basic knowledge होना चाहिए, बाकी इतना नहीं होना चाहिए. बट लोगों को ऐसा ही लगता है कि there is something कि भाई मेरे को अगले दिन ही जैसे मैं डेस्क पे आऊंगा मेरे को पकड़ा देंगे डेटाबेस और समथिंग, और मेरे सामने इतनी टेबल्स होगी, ऐसा मीन होता है. मेरे को भी ऐसा ही लगा था. बट जैसे जैसे आप रिसर्च करना इज इम्पोर्टेंट, यू शुड हैव राइट सपोर्टिव लाइक पार्टनर और समथिंग यू शुड गेट जो आपको बताए सही राह दे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी वही होता है कि यू विल थिंक coding. Exactly. So whenever we train the students, okay, whenever we train the students and we give the experience and all of teaching everything, students will ask, sir, what will I do after joining the first day of the office? So how their expectation, the moment they went to the office, they'll give a laptop and they say, this is your work, start working on it. So no, that is not the way, because पता चला हाथ में लाल हाथ पकड़ा दिया टक टक करते गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. So they'll have ample of time. मैं बोलता हूँ कि IT you will get KTs and all these exactly things. They'll be having a comfort zone will be provided. ऐसा कभी नहीं होता है कि the moment event चलो लैपटॉप लो स्टार्ट काम कर शुरू करो भैया काम पे लगो, ऐसा नहीं होता है. तो पहले एक रिलैक्समेंट जाता है, पहले अवेयरनेस क्या था कि तुम्हारी टीम कौन सा है. सी गाइस, दिस इज अ डेवलपमेंट टीम, दिस इज अ टेस्टिंग टीम, दिस इज अ स्टेक होल्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल they'll make comfort, but then they'll let you know what are the mandated trainings you have to do, what is about the office culture, फिर payroll क्या है, this everything they'll explain neatly. Then उसके बाद slowly they start the KT sessions. They'll try to make them understand what is the project, how is the company and organization working, who is the counterpart and all, and it will take a sample amount of time it will take. And उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि तुरंत काम पकड़ा देते, no, not even that. Slowly they'll start एनालाइजिंग. जैसे होता है ना कि वन रिक्वायरमेंट स्मॉल रिक्वायरमेंट हैज बीन गिवन, यू विल ऑलवेज इन्वॉल्व इन द कॉल्स. तो चलता रहता है कि यू विल गेट टू नो ओके व्हाट इज हैपनिंग इन सो एंड सो प्रोजेक्ट, व्हिच पीपल आर वर्किंग, हु इज माय बीए, हु इज माय प्रोडक्ट ओनर, हु इज माय टीम. यू विल गेट टू नो, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एट द टाइम. देन स्लोली एक प्रोजेक्ट मिलता है, फिर उसके बाद देते हैं भैया अब ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम अब तक समझ चुके हो, अब तुम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करो. अब लोगों का ये रहता है कि जाते पकड़ा दिया भैया लैपटॉप ले लो, चलो बेटा शुरू करो अब काम करना करके. या ये दे गेट प्रॉपर केटीज एंड ऑल. ये थोड़ा लोगों में अवेयरनेस कम है, उनको लगता है कि बस आईटी मतलब अगले दिन बस पकड़ा दिया जॉब और हाँ, उनको करना है ये करने वाला टाइम. अब तुमने बोला ना कि पहले अब नॉन आईटी का था, इतनी सारी चीज़ें थे, तो नॉन आईटी से तुम आईटी में ट्रांसफर करे, तो क्या ये ट्रांजिशन तुम्हारे लिए ईजी था? If I say like see I am a very passionate guy, if I choose anything I give my 100%. ठीक है, वो हो ना हो उसके ऊपर है, बट आई गिव 100%. सो मेरा ऐसे ही था कि आई हैव गिवन कि भाई 6 months आई विल जस्ट स्टडी वॉट एवर आई हैव टू डू. सो आई हैव सम कोर्सेज एंड ऑल. आई हैव जॉइंड वन इंस्टीट्यूट इन पुणे एंड देन आई यूज्ड टू लाइक गिव माई 1 hour एवरी डे. ठीक है, मैं वही बोलता कि यू डोंट हैव टू गिव 24 hours 12 hours यू हैव टू स्टडी और समथिंग. जस्ट गिव 1-2 hours एवरी डे टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी. ठीक है, दैट्स लाइक मैटर.
तो मैंने वही किया, 6 महीने तक पढ़ा, सब कुछ किया, देन फिर मैंने इंटरव्यूज़ देना जल्दी ही चालू कर दिया था, लाइक खुदा और लाइक ऊपर वाले ने चाहा और मेरे क्रैक होते रहे इंटरव्यूज। अच्छा। तो मेरा एक ट्रिक मैंने अपनाई थी कि मैंने देखो लाइक आई वांट टू चूज लाइक पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर, दिस लोकेशन आई वांटेड टू चूज, Okay. बट आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यू फॉर गुड़गांव, नोएडा, Okay. दिल्ली, जहाँ पे मेरे को नहीं जाना है, लाइक Okay. जयपुर एयरपोर्ट। Okay. सो Okay. मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहा जब मेरा कोर्स आधा कंप्लीट हो गया, एंड आई वाज वांटेड टू चेक माय नॉलेज कि भाई व्हाट एवर आई एम स्टडिंग इज इट आस्क्ड इन द इंटरव्यू, इज इट करेक्ट, वेयर आई एम गोइंग, या मेरे को कुछ और इम्प्रूव करना है, देयर इज समथिंग मिसिंग। सो ये एक ट्रिक लोग अपना सकते हैं इफ दे वांट टू गिव इंटरव्यूज और समथिंग, दे वांट टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। सो लाइक व्हाट आई डिड इज लाइक जो मेरे को लोकेशन नहीं जाना था, दिल्ली, गुड़गांव मेरे को नहीं जाना था, तो आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यू टू दैट लोकेशन कंपनी, ठीक है। सो आई गॉट टू नो लाइक व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एंड ऑल। सो वो जो भी था मैंने 2 महीने फिर मैं लगाता था, वॉट एवर द इम्प्रूवमेंट आई नीड आई जस्ट डू दैट थिंग्स। Then I started giving interview for like Pune, Hyderabad and Bangalore, and today I'm in Hyderabad from last 2-3 years. नाइस। एज यू मेंशन ना कि तुमने इंस्टीट्यूट चुना और फिर वहाँ से लिया, तुमने क्या एक ही इंस्टीट्यूट चुना या मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स गए थे तुम? यू नो धक्का मुक्की खाना पड़ा कि ऐसा होता नहीं ना, जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन हैदराबाद की बात करते हैं तो ट्रेनिंग कोर्स मतलब जानते हो अमीरपेट में कितने सारे बोर्डिंग होर्डिंग्स रहते हैं। अब उनको क्या रहता है, व्हेन द मोमेंट द स्टूडेंट कम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दे आस्क लाइक वी वांट टू लुक एट दिस कोडिंग एंड ऑल, we want to go over the testing. No sir, testing is not that important sir. The data analytics course is coming which is very much important, very much high, with it's a blooming. If you go the down line or next 2 or 3 years, that will be, you'll be getting great sir, you'll get highest package salary sir, दिल से। उसका कोडिंग नॉलेज है ही नहीं, उसको कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, उसको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसका स्किल सेट नहीं है। अब वो जिस तरह से वो बंदा एक्सप्लेन करता है अपने मार्केट स्ट्रैटेजी को पॉपुलेट करने के लिए, करने के लिए, अब ये बोल रहा है कि डेटा एनालिटिक्स ही तुम्हारा फ्यूचर है, AI ही तुम्हारा फ्यूचर है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आदमी सोचने पड़ जाता है, इज इट रियली समथिंग ओके, इफ आई एम नॉट टेकिंग दिस, आई नॉट एबल एलिजिबल टू डू इट और नॉट। अब वो बंदा अब लगता है कि ओके चलो ट्राई करते, बिकॉज पैशनेट होते हैं लोग कुछ कोशिश करने के लिए, दे विल इन्वेस्ट इन द रॉन्ग थिंग। जो इंस्टीट्यूट्स वाले वो करते, दे विल इन्वेस्ट इन रॉन्ग थिंग। अब वो करने के बाद क्या होता है, the moment they join, they'll not analyze their capabilities, and you know whatever the teaching, the proper training they'll not get from there. That is where the people lost the trust, and you know they You will should be downfall. clear what you want to do. You should not be like कोई तुमको ये बोल रहा है ये Exactly. करो वो करो, कितने थाउजेंड ऑफ कोर्सेज है, बट यू शुड क्लियर लाइक कि कहाँ जाना है, तो वो उनको आना चाहिए। वो आना चाहिए, मतलब एक स्किल सेट अपने में क्या है कि मैं कितना केपेबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरा 13 years का एक्सपीरियंस है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन कोडिंग। Yeah. In SQL also I worked very less. And you are working in IT. I'm working in IT, I'm working in the top, till now I've worked in all top MNCs. Yeah. Do you think that how I'm surviving here? So without knowing the coding language, without knowing the programming language, still I'm doing well and better. Why? Because I have my strengths. I am as a functional BS, I have the understanding of, you know, I have a good communication skill, good convincing skill, good requirement gathering skills, presenting skills, documenting skills, which are completely non-functional. But I'm very good at it. So that is the reason which is making me to survive in the IT for a good time. Yeah, you should improve every time when whatever you are getting something. इसलिए this is the reason which I always say, you know, awareness is most important thing. That is the first thing, because before choosing anything, first of all, many people will come and many people will suggest a lot of things. You know, family friends will come and say, why won't you do this? This is good for you. Why won't you do this? This is good for you. Some friends will come and say, they'll suggest n number of things are there. If you right now, if in the current market and current position, if you see n number of jobs, n number of courses, everything is there. But which one suits to you? Yeah, that should be Basically. correct. इससे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा असलम भाई, अभी रिसेंटली लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, सो शी वाज सेइंग लाइक कि मुंबई में उसके साथ एक ऐसा स्कैम हुआ कि वहाँ पे उसको बोला कि यू हैव टू पे 4,000 कि वी गारंटी कि भाई हम जॉब देंगे, ऐसा ऐसा करके। अब लोग पता है कि आफ्टर बहुत बड़ा scam होता लाइक है, जैसे कॉलेज से निकलने के बाद फ्रेशर को कितना मुश्किल होता है जॉब Exactly, लगना हाँ. है, तो लोग इनमें आ जाते हैं। सो शी पेड मनी एंड ऑल, आफ्टर दैट उन्होंने फिर वो सपोर्ट में लगाते या सिर्फ बोलते सिर्फ इंटरव्यू कराते, वो भी नहीं कराते, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे स्कैम्स चल रहे। तो या यू आर करेक्ट कि गेटिंग राइट इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो मेन डिसीजन। लाइक वही एक है कि वहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसके क्या रिव्यूज है। यू शुड गो एंड चेक रिव्यूज, चेक लाइक व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टीज आर देयर, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंस, व्हाट आर द प्लेसमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू चेक बिफोर इनटू लाइक एनरोल इनटू एनी इंस्टीट्यूट। सो यही था।
बस मैं जब बात कर रहा था जब मुझे याद आ रहा है जैसे पीपल विल बी सो मच वरीड अबाउट नो अबाउट हाउ द लाइफ विल बी देयर आफ्टर कमिंग टू IT एंड ऑल एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ द मोमेंट वी गो टू ऑफिस हाउ वी स्पेंड आवर टाइम वी सिट इन द मीटिंग रूम एंड वी डूइंग चिट चैटिंग एंड लिसनिंग द सॉन्ग्स एंड पैरेलली वी आर डूइंग वर्क एज वेल पैरेलली डू द वो बोलना पड़ेगा ना वही बोला तो एक दो काम भी करते फिर गाने भी सुनते फिर टी ब्रेक भी जाते इतना मस्ती करते हैं हम लोग इतना हो रहता है दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि मतलब इट्स ओके मुझे यही था फॉर एग्जांपल माय फैमिली एवरीवन इनटू बिजनेस एक्चुअली लाइक माय ब्रदर इज हैविंग यू नो ही इज हैविंग गारमेंट शॉप्स माय डैड इज इनटू फ्रूट बिजनेस एंड ऑल एंड ही सेड तुम बिजनेस में क्यों नहीं आते बिजनेस में क्यों नहीं आते मेरा इंटरेस्ट नहीं है भैया आई एम फ्रॉम 9 to 5 जॉब मैं वही बंदा हूँ सुबह 9 बजे जॉब पे ऑफिस जाना अच्छा लगता है फिर शाम को 5 बजे आना अच्छा लगता है ये वाला कि थोड़ा बहुत मुझे है प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है मेरा खुद का एक अच्छा लगता है मुझे लगता है कि लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है बेसिकली कम्युनिकेशन करना अब तुम बिजनेस एनालिस्ट का जॉब ले लो तो वेर इन द बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल यू विल गेट अ चांस टू स्पीक विद द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो जाएगा एंड आई फील दैट आई कैन कन्विंस एनीवन आई एम हैविंग गुड कन्विंसिंग स्किल्स सो वेर आई फील दैट आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कन्विंसिंग स्किल्स आई कैन लर्न अबाउट द प्रोडक्ट आई कैन लर्न द रिक्वायरमेंट आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट solution the same thing I can explain to our development team how things are working so in front of you can see that how the future is getting developed correct so that is my interest actually so ये वाला बहुत अच्छा लगता है and what is the good thing about IT is you can give time to your skills and family also exactly अभी मैं बताता हूँ like I am like see अगर मैंने फिल्म मेकिंग छोड़ दिया या छोड़ दिया तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों किया फिर तूने अगर why you wasted your 5 years 3 years इतना courses में I was like still I am doing it like see I used to love to talk to the people ठीक है I used to make some videos cinematography and all these things which I am doing through my YouTube channel which I give time on like Saturday Sunday so you know like IT we have to work only till Friday और फ्राइडे तक भी लोग चिल ही करते हैं तो वही सैटरडे संडे अपना स्किल सेट्स पे काम मिल जाता है करने को whatever the hobbies you are having like you can just give time to your family and hobbies also so that's the good part of IT which we can give But then Saturday, Sunday, at least we'll get ample of time to do, you know, our passionate things and all. Obviously. So, for example, I said, like, you know, the start. And even आज Saturday को ही हम ये कर रहे हैं. Exactly, हम लोग ये कर रहे हैं. तो अब देखो, for example, the opposite person who we were currently sitting in front of me, हर कोई ना बंदा कोई ना कोई चीज सिखा के जाता है. Obviously. Like every person is very unique and everyone has some unique skills. कुछ ना कुछ एक बात पता के जाता है. Every day I'll go from this shoot from back to the home. There is always a takeaway. Okay. Always a takeaway will be there. Okay, I have to learn this quality from this person. I have to learn something from the other thing this person. So it's always interesting, you know, when you speak to the people and all. And जो आपकी स्किल्स को देखेगी राइट दे विल नॉट आस्क योर डिग्री और समथिंग अगर आप मैंने तो वो भी देखा है लाइक इफ आई विल से समथिंग कि मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया था वहाँ पे बीटेक के लोग थे BCA के लोग थे MCA और लाइक मैकेनिकल बैकग्राउंड ये सब था और मेरा जर्नलिज्म होते हुए भी लाइक मेरा पहले हुआ था वहाँ पे लाइक प्लेसमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ यू गिव योर 100% और लाइक कितना पैशन है आप कितना सीखने की चाह रखते हो ठीक डिग्री मैटर नहीं करता है सो 2-3 मिथ है लाइक एक पहला कि IT में कोडिंग ही होता है एक वो आपको दिमाग से निकालना चाहिए दूसरा डिग्री अगर मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैं कैसे जाऊँ या समथिंग आप बस अपनी स्किल सेट्स इंप्रूव करो अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो अपने आप सब हो जाएगा यू हैव टू गिव योर 100% टू वॉट एवर यू आर लर्निंग जो भी आप कर रहे हो ठीक है ये जो मीथ है वो आपको निकालने पड़ेंगे और तीसरा कि भाई IT में अगर मैंने ये सीख लिया बट मेरे को अगले दिन जाके ही काम करवा देंगे ऐसा नहीं होता यू विल गेट प्रॉपर टाइम केटीज एंड ऑल दिस थिंग्स IT का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है जहाँ पे यू विल गेट गुड पीपल ठीक है जहाँ पे वो लोग सिखाएंगे बट यू हैव टू vocal right you have to like make some relation with like developers tester whatever like तो आपके अंदर की खूबी होनी चाहिए तो ऐसा नहीं है 3-4 चीज़ें जो लोगों को अभी भी है जो मेरे LinkedIn पे मैसेज आते रहते हैं exactly for example if you are looking at our year do you think 12 months are we in winter season no for 12 months are we in summer season no so we have divided seasons you know like sometimes it is summer sometimes it's winter some autumn some rainy and all so IT also can't expect throughout the 12 months it will be the same obviously because of you know some projects will be there which at that particular time you know the deadline there will be a pressure will be there but only for an ample amount of not for ample amount of time only for a smaller amount of time it will be there ओके पर एटलीस्ट कभी अर्जेंट प्रोजेक्ट आ गया डेडलाइंस करीब पड़ गए तो 1 or 2 months ऐसा होता है ऐसा नहीं होता कि 12 महीने ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बोलते हैं ना कि मैंने सुना था क्या हर्ड लाइक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन IT as well will not able to handle it or not तो सी प्रेशर इज एवरीवेयर it's you
how to deal, how to handle that. How to handle, you should. Are we not Yeah, handling the obviously. family problems? Are we not handling Obviously. the society issues and everything? We are trying to handle, we got habituated to handle all these things. So, in the same way, in IT as well, you are not handling the pressure for 12 months. If then you are handling the pressure for 12 months, then you are not in the right company. Then. Obviously. Then you have to make a more out of it. Then work culture is something. The work culture is toxic. You फिर should वहाँ get से हट out. जाना चाहिए. Yeah. Exactly. Because the companies मैंने देखे which are very toxic and you know very well. which are very toxic. So they वहाँ से बाहर आ जाना चाहिए. We need to come out of it. So that's what एक क्या था एक shorter period of time होता है कि थोड़ा देर के लिए pressure होता है, which is very common. और and you don't know when you are doing the things in shorter. उतनी चीजें भी मिलती है, like Exactly. अभी देखिए हमें हमारी कंपनी दे लाइक वी गो आउट फॉर लाइक डिनर एंड ऑल दिस थिंग्स, क्लब्स पार्टीज होती है, देन गेमिंग्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट ये सब कराते हैं. अब वो एंजॉयमेंट भी तो होता ही है. अब जब किसी एक दिन हमको अगर कोई बोलता है तुमको वीकेंड पे भी काम करता है, किसी सैटरडे को कभी हो जाता है डिप्लॉयमेंट या कभी एक्सटेंड होता है वर्क आवर्स, देखो काम है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, Exactly. क्योंकि एंजॉयमेंट भी उतना ही होता है. तो वही Exactly. चीज़ है, फ्लेक्सिबल आवर्स, हाइब्रिड बहुत चीज़ें देती है आईटी, तो अपन को भी कुछ देना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे रिलैक्स में तो कोई भी काम कर लेगा यार. Obviously. अब कभी कभी अगर साल में एक महीना में तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया तो उस समय तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बाहर आ जाती है. तुम सोचने लगते हो कि यार इतने टाइम में कैसा काम करे, तुम्हारा डेडिकेशन दिखता है, तुम्हारा पैशन दिखता है, स्किल सेट बाहर निकल के आते हैं. इट्स ओके. कभी कभी हो सकता है थ्रू आउट द ईयर और मोर देन एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, नो दैट इज नॉट एंकरेज. पर कभी कभी इट्स स्टिल फाइन. मुझे लगता है कि इट्स ओके. अगर वो 12 महीने हो रहा है तो फिर वो तो भैया बाहर. यू शुड लुक अरे आउट. इतने मिथ्स. अब मैं बता रहा हूँ ना, लोगों के इतने मिथ्स से मुझे लगता है कि एक पूरा वो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग. अब कभी पूछते हैं कि पहले तो जैसे बोला एजुकेशन के बारे में हो गया, दिल बी हैविंग, फिर आई एम द गुड एग्जांपल फॉर इट. एग्जांपल कोर्स के बारे में हो गया, द मोमेंट ज्वाइनिंग के बारे में हो गया. एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट एआई? No, AI is coming, sir. Like AI is coming, how it will do? Because everything AI is only doing it. So whether it will be reliable, our jobs will be stable or not, what guarantee? Because AI is replacing everything right now. So what is our future of our jobs? एआई से काम कौन करवा रहा है? हम ही तो करवा रहे हैं. वही बात है. देखो सब चीज़ें, देखो एआई को प्रॉम्प्ट क्या देना है, वो सब चीज़ें कोई एक ह्यूमन माइंड ही तो है उसके पीछे. अब बहुत चीज़ें, अब इफ आई टॉक अबाउट माई टेस्टिंग फील्ड, ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि अभी मैनुअल टेस्टिंग सब चला जाएगा, ठीक है, देयर विल बी नो मैनुअल टेस्टिंग, बट आई विल से लाइक मैनुअल टेस्टिंग रहेगा फॉरएवर. देखिए कुछ चीज़ें होती है, देखो सब चीज़ें एआई नहीं कर सकती, ठीक है. इफ यू विल आल्सो सर्च समथिंग ऑन चैट जीपीटी, जेमिनी और लाइक कुछ भी कोपायलट समथिंग, कुछ ना कुछ गलत ही देगा. आपको अपना ही माइंड लगा के कुछ ना कुछ सही करना. इट विल गिव 80% और समथिंग, 20% यू हैव टू पुट समथिंग कि आपको करेक्ट मिले. तो एआई इतना नहीं है इम्पैक्ट करेगा, बट या यू हैव टू स्किल अप योर वॉट एवर द स्किल सेट्स यू आर डूइंग, लाइक उसको स्किल अप करना ही पड़ेगा, राइट. सीखते रहना, दैट्स द पार्ट ऑफ आईटी. यहाँ पे पढ़ते रहना ही चाहिए. तो वो है. अब आपने मेंशन किया कि पढ़ते रहना, स्किल्स, ये अपस्किलिंग के बारे में बहुत बात करते रहते. पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट अपस्किलिंग. व्हाट डू यू रियली मीन बाय अपस्किलिंग? डू यू मीन दैट अपस्किलिंग इज मीन सर्टिफिकेशंस? It's not about certification. It's more about like getting every skill. Like what about like let me tell me about me. So what happens like every year I will add my some skill sets. Like इस साल मैंने पढ़ा JavaScript, ठीक है. इससे पिछले साल I was into like Java. Next year I'm planning for like Python or something. Or if I talk about my tools, like last year I was working on Selenium, this year I am working on Cypress, next year I will work on, like I have some plans, like किस skills में जाना है. So that's the thing. So you have many things like Udemy and everything you will get online nowadays. So you have to like certification जरूरी है, करते रहना चाहिए, and to make your LinkedIn profile good वो भी है, but आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन शो करने के लिए नहीं करना. यू हैव टू गेट स्किल सेट्स ऑल्सो. उसका रियल टाइम प्रोजेक्ट करो, फ्रेमवर्क बनाओ, कुछ अपने गिटहब प्रोफाइल पे ऐड करो समथिंग. जब व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू यू कैन शोकेस दैट थिंग, राइट. सर्टिफिकेट बोलने से क्या होगा? व्हेन यू आर नॉट शोइंग योर नॉलेज तो उसका कुछ फायदा नहीं. एग्जैक्टली. सो मोर अबाउट skill sets. So मैं बोलता हूँ upskilling doesn't mean that you have to get certified. Yeah. Upskilling is different and getting certified is different. Okay, so I'm not saying certifications are bad. For example, you feel that we are having skill set. Okay, it will be an added advantage. You definitely go for it. But doesn't mean that if you are making the certification you will get the complete knowledge and you will able to do something. Both are completely different actually. Because जब interview में जाता है, I they can got ask one question. Exactly. I remember one thing. So there were two profiles in front of me. One guy was having 17 years experience. One guy was having around 10 or 12 experience. I don't remember the experience actually. So but I remember one guy who is having multiple certifications and another guy don't have any certification profile. So I asked him one basic question. Like I asked him like how are you working in the agile methodology? Why are you following
following and all. He started speaking in such a bookish language and encrypted way. I could not even figure out what he's exactly saying. Either he was like over top of the something, what he was saying. So मुझे लगा कि बेसिक सा सवाल है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग, द आंसर आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट. So I want a guy who can come to और resume certification बोर्ड डाल रखे होंगे. Exactly, बहुत सारे लग रहे थे. I want some guy who can understand my work culture and basically I don't want any overqualified person because मुझे कुछ rocket science build up नहीं कराना है यहाँ पे. Basic काम करना है अपने साथ. The other guy was like he didn't do any certification at all, but having the basic knowledge he was having, like whatever I'm trying to ask him, he was able to show his skill set. That was very more than enough. Yeah. He had some couple of mistakes he didn't able to answer, but as a being an interviewer, I am not expecting 100% answers. Obviously. It's not always to be true in the interview. It's like we are thinking like what is your way of approach. And even if you are selecting someone, he should ready to learn something new. Ready to learn something. Yeah. We always look the way you're speaking in the interview. For example, sometimes even we are lying also. If you're lying with the confidence, at least we will have that, that confidence that we can select you. बंदा गलत भी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो झूठ भी बोल रहा है पर एकदम डंके के चोट पे बोल रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस अपने को आ जाता है, तो उससे हम लोग ले सकते हैं. वो भी एक आईटी की स्किल सेट, वो भी एक स्किल सेट है एक्चुअली, वो भी बोलना चाहिए. ठीक है, तो अपना ज्यादा क्या होता है, काम कर भले कम हो, प्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए. प्रेजेंटेशन चाहिए. वो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, वही एक आईटी का है. और ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? यू शुड बी पार्ट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, नॉट बी अवे फ्रॉम इट. हाँ, नॉट बी अवे फ्रॉम इट, यू शुड बी पार्ट ऑफ, एंजॉय इट, और बस वो अपनी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी एंजॉय इट, वो सब जगह होता है, यू शुड बी पार्ट ऑफ इट. बट हाँ, उससे डर के रहोगे. अब मेरे को आता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, चलता रहता है, सब ऑफिस में होता है, ऐसा नहीं यू विल गेट सम कि भाई बहुत अच्छा माहौल है, समथिंग होता रहता है. यू शुड लाइक अपने काम पे फोकस रखो और जितना चीज़ें चल रही है वो सब करो, बस इसका तो यही है अभी फिलहाल. यू शुड एंजॉय. तो कितना टाइम लगा, व्हाट डू यू थिंक, फॉर पीपल हु आर इन नॉन आईटी हेड टू नॉन आईटी टू ट्रांसफॉर्म देयर करियर इनटू आईटी, हाउ मच दे हैव टू वेट, व्हाट इज, ऐसा कुछ होता है कि वेट टाइम इतना रहने से हो जाएगा, लाइक हाउ? सी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्टेप्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन ने आज सोचा और कल ही सब चीजें हो गई, ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंस. बट हम इंडियंस में पेशेंस का हमको चाहिए कि अगर मेरे को इस पैकेज पे पहुंचना है तो कल ही पहुंचना है, मेरे को ये चाहिए तो कल ही. हाँ, ट्रेनिंग में देता हूँ ना सर, यू टीच मी एवरीथिंग कोर्स इन सिंगल डे सर, I'll read it and do it. It's not about me teaching and you learning. It will take a lot of time. I will share my experience. I got like one call from LinkedIn, ठीक है, he was very confused about career. So उसने पूछा कि which tool you are working currently, आपको किसको एक कॉल ज्यादा आ रहे हैं, तो I was like साइप्रस पे मैं कर रहा हूँ काम, तो मेरे को ना साइप्रस के इंटरव्यू क्वेश्चन भेज दो ना. मैं बोला पहले साइप्रस क्या होता है पता है? समझ तो लो. हाँ, मतलब ठीक है, वो टूल तो समझो क्या है, जो भी टूल है. नहीं इंटरव्यू क्वेश्चन भेज दो. मतलब ठीक है, मैं 15 भेज दूंगा, तो तुमको कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ले तो क्या है? पीपल आर मोस्ट लाइक कि भाई मेरे को मतलब वेट नहीं करना है कि पढ़ना नहीं है, अपने को टाइम देना पड़ेगा. दैट्स आई हैव गिवन 6 months, ठीक है, एक टूल को अच्छे से करने में. आई हैव लाइक क्रिएटेड सम फ्रेमवर्क्स एंड ऑल, अपलोडेड इन गिटहब टू शो माय प्रेजेंटेशन, और पूरा बहुत चीजें किया था, तब जाके सब कुछ होता है. ऐसा नहीं कि फिर अगले दिन मैंने सोच लिया समथिंग. और ऐसा है कि लोग जल्दी भी हार मान लेते हैं अगर 1-2 इंटरव्यू गंदे चले जाते. होता है यार, एग्जैक्टली होता है, सबका परफेक्ट नहीं होता. अरे नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता. यू शुड लाइक होता रहता है इंटरव्यू. तुमको कौन सा घर पे बैठ के तो वर्चुअल इंटरव्यू देना है, exactly. कौन सा वहाँ पे बुला रहा है. सर यू सेंड मी द पीपीटी सर, आई डिड इट इन सिंगल डे एंड आई विल क्रैक द इंटरव्यू. हाउ विल यू क्रैक द इंटरव्यू इन सिंगल डे बाय सेंडिंग द पीपीटी? दैट्स व्हाट आई से, इट्स नॉट अबाउट सेंडिंग द पीपीटी, नॉट अबाउट सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, कि प्रोडक्ट क्या है अपना, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, व्हाट इज दिस जॉब अबाउट, व्हाट इज माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू अचीव सो एंड सो थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू लर्न, व्हाट इज द प्लान. दिस इज ऑल वी हैव टू गो थ्रू इट. नो, आज के इसमें इतना पेशेंस नहीं है. ओके, इतने लाख पैकेज है, करंट पैकेज इज 2 lakhs, हाउ मच आई वांट 8 lakhs, व्हाट नीड टू बी डन दिस. चलो फटाफट चले जाओ, ये खत्म कर दो, क्लियर कर दो, इंटरव्यू हम क्लियर कर देंगे. लोग ऐसे जा रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट में ज्यादा पैसा है, उसमें जा रहा हूं, उसमें चले जाओ. आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, अब आपको डेटा साइंस में फिर जाके फिर बोलोगे कोडिंग इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है. देयर आर मेनी थिंग्स राइट. अभी मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बीए से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत चीजें, नॉन कोडिंग से स्टार्ट करके फिर जाओ जो भी करना है. नहीं डेटा साइंस वो देखते हैं पैकेज सबसे पहले, तो वो सब चीजें
exactly, the nice example you have taken. For example, data scientist course is there. We are taking it example, and they are saying they are completing the course within 3 months. Oh. And this is after completing the course in 3 months, you have good opportunities, and this is the package. But looking at the high number package, everyone will try to take the data analytics course, which is for 3 months. But do you understand what is there inside the data analytics course? For example, the coding is there. He might be having the prerequisite of coding actually in it, and 3 months based on that mentality is completing the course in 3 months. You don't have the coding. To learn the coding, you'll get 6 months for you. Obviously. You have to learn the coding for 6 months. It is not for you then in that case. You have seen only 3 months data analytics course, high package, and you join that course. तो ये ऐसा वर्कआउट नहीं करता है. And the biggest problem right now we see in IT, which we all are facing right now, is 3 months notice period. Oh. Recently, I have seen an article in Times Line of India, which have mentioned that 3 months notice period is creating a havoc for all the IT employees, which is not aligned to do so and so things. Recently, JP Morgan company भी बोला है कि if someone accepting the offer letter before their tenure period, or they are accepting the offer letter within 2 years, they'll be terminated something. So 3 months notice period. What do you think about it? कैसे डील करना है? 3 months notice period, ये सबसे ये भी बहुत क्वेश्चन है जो लिंक्डइन पे वैसे पूछा जाता है कि हाउ यू हैंडल 3 months notice period. हाउ देखो अभी सब कंपनीज का यही है. सो बट व्हाट यू कैन डू इज लाइक लेट मी टेल यू मैंने एक HR से लड़ाई कर ली थी इसके पीछे, पता है. शी वाज कॉलिंग मी कि भाई आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, ये सब हो गया है. अभी मैंने उसको जल्दी थोड़ा बोल दिया था कि आई कैन ज्वाइन इन 15 डेज. अब इंटरव्यू शेड्यूल कराना था. अब वो मैंने फिर बताया 3 months नहीं बोला, मैंने बोला 45 डेज है. अब तो हाउ यू कैन लाई और समथिंग. मैंने बोला आपका नोटिस पीरियड कितना है? हाँ. तो बोली 3 months. एग्जैक्टली. और मैंने बोला तुमको मैं चाहिए अगले कल परसों चाहिए, ठीक है, एंड यू कांट वेट. आपका नोटिस पीरियड 3 months है. खुद का कंपनी का नोटिस पीरियड 3 months होता है, बट दे वांट इमीडिएट जॉइनर्स. बट इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने की थी, जो और लोग कर सकते हैं. ठीक है, देखो आपका 3 months नोटिस पीरियड है. उससे पहले ऐसा होता है कि 3 months भी बहुत अच्छी भी चीज़ है कि जहाँ पे यू कैन जस्ट लर्न समथिंग न्यू. 3 महीने बाद जो भी आप करना चाहते हो, जो भी स्किल सेट्स या आपके ट्रेंडिंग है आपके डोमेन में, यू कैन जस्ट लर्न इन दैट 3 months, राइट. आपको देखो अगर आपको जब विश्वास हो जाता है कि यू कैन गेट कॉल्स और समथिंग, और तो क्या कर सकते हो, जस्ट फर्स्ट रिजाइन. ठीक है. अब लोग बोलते हैं कि क्या रिजाइन करना चाहिए बिना जॉब के. अगर आप इसके लिए ही वेट करोगे तो कभी जिंदगी में कॉल नहीं आएंगे. ठीक है. कोई भी कंपनी सिर्फ ओनली 0.1% चांसेस होगा कि अगर आप IITian हो या NITian तो आपके लिए 3 महीने तक वेट कर लेगी. बाकी किसी के लिए नहीं करती. इतने ढेरों सारे स्ट्रगलर्स भरे हुए हैं लोग. आप नौकरी प्रोफाइल पे, मैंने ना लिंक्डइन पे एक वैकेंसी डाली मेरी कंपनी की, मेरे को 70 रिज्यूम्स आए. सोचो एक वैकेंसी के लिए 70 रिज्यूम्स, तो कितना क्या है. तो आपको ऐसा ही है कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, और जैसे आपको लगता है कि आज मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया है, तो वो वाली ट्रिक अपनाओ. पहले उस लोकेशंस पे इंटरव्यू दो जहाँ पे आपको नहीं जाना है. ठीक है. सपोज आई एम इन हैदराबाद, आई डोंट वांट टू गो दिल्ली गुड़गांव, तो मैं यही करता हूँ, पहले दिल्ली गुड़गांव के इंटरव्यू देता हूँ. वहाँ से होता है कुछ रिजेक्शन होता है, कुछ जहाँ पे सिलेक्शन होता है, फिर मैं अपना जो गैप पॉइंट होता है मैं उसको फिर अच्छे से कर लेता हूँ. ठीक है. देन आई गेट टू नो हाँ नाउ आई एम 95% गुड, नाउ आई कैन क्रैक बेंगलोर हैदराबाद के इंटरव्यूज. तो फिर मैं क्या रिजाइन डाल देता हूँ, एंड देन फिर अपने HR या जो भी अपने मैनेजर से बात करके फिर वो करो कि भाई थोड़ा जल्दी छोड़ दो या समथिंग वॉट एवर. वो थोड़ा करना पड़ता है. यू हैव टू बी इन गुड रेपो विद देम. ठीक है. फिर जाके वो कुछ हो तो ठीक है. और 3 months में फिर कॉल्स आते हैं, फिर ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है. 2nd month से फिर इंटरव्यू देना चालू कर दो. ठीक है. तो 3 months का आप ये कर सकते हो, पहला मंथ यू जस्ट गिव योरसेल्फ फॉर स्टडी. 2nd month से इंटरव्यू देना चालू करो. 3rd month में आपका इंटरव्यू क्रैक होना चालू हो जाएगा. यू विल हैव 5-6 ऑफर्स, देन यू कैन सेलेक्ट. बट पहला यही है कि आपको एक बार पैशनेट होना ही पड़ेगा. 3 months में आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरा डेडिकेट देना पड़ेगा. मतलब डेडिकेशन पूरा यू हैव टू गिव टू स्टडीज, राइट. तब जाके कुछ होगा. सो दिस इज हाउ आई जस्ट हैंडल दिस 3 months. पहले झूठ बोलना पड़ता है. ठीक है. ऐसा नहीं अगर आप सच बोलोगे भाई 3 months. अब मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती है आई हैव 3 months नोटिस पीरियड, 90 days. भाई कट कॉल. तेरे कॉल कैसे सेलेक्ट होते हैं? मैंने पहले इंटरव्यू शेड्यूल कराने के लिए थोड़ा तो बोलो. 3 months मत बोलो, 30 days बोलो. 30 days नहीं 15 days बोलो. कुछ ऐसा करके पहले इंटरव्यू शेड्यूल कराओ. बहुत सारी कंपनी है, थोड़े जाए 5-6 इंटरव्यूज चले जाए. हाँ चलो ठीक है. अभी मेरा एक हुआ था कि मैंने थोड़ा ऐसे ही किया था इन्फोसिस के साथ कि हाँ मैंने 3 months का नोटिस पीरियड था, इवन 2 months का था. ठीक है. तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरा अभी नोटिस पीरियड है, प्रोजेक्ट ओवर हो गया. ठीक है. मैंने ये बोल दिया प्रोजेक्ट ओवर हो गया एंड माई लास्ट डे इज दिस. ठीक है. और यहाँ पे अभी कैटी चल रहा है, तो आई एम दे आर रेडी टू रिलीज मी. ठीक है. जस्ट आई शुड हैव 1 ऑफर, आई विल गेट रिलीज.
दे वर लाइक ओके, फिर उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करा, ये सब किया, अब जाके मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो आए कि भाई नाउ यू आर सेलेक्टेड, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग ऑन 28 मार्च, एंड उस टाइम था 23 मार्च, एंड आई वाज लाइक अब क्या करें, ठीक है। अब इंटरव्यू क्रैक हो गया, अब फिर एचआर इनसे बात की, दे वर लाइक नहीं, पॉलिसी है हमारी कि भाई 2 मंथ से ज़्यादा कम नहीं करेंगे, मतलब भाई छोड़ दो। फिर वो 45 डेज पे आए थे समथिंग। फिर मैंने इन्फोसिस वालों को भी बता दिया कि भाई जो चीज़ है हमारी, कि भाई नहीं, दे आर नॉट रिलीजिंग मी, ठीक है, बिकॉज लाइक उनके पास एक ही रिसोर्स है अभी फिलहाल, वो मैं हूँ, ठीक है, एंड अभी वो प्रोजेक्ट वापस से आ गया है, तो आई वॉन्ट टू गिव देम लाइक 1 मंथ और समथिंग अंटिल दे फाइंड द रिसोर्स रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑल। पहले इन्फोसिस वाली एचआर थोड़ी नाराज हुई, बोला ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, फिर जाके वो भी मान गए, देन दे वेटेड फॉर मी लाइक 2 मंथ के लिए वेट किए थे, तब तक मैंने दूसरा ऑफर ले लिया। तो ऐसा ये सब खेल खेलना पड़ता है, यू शुड लाई इन द आईटी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। एक काम करते हैं हम लोग ऑडियंस के लिए ना, एक डेमो प्ले करते हैं। ओह ऐसे कि तुम एचआर बनो और मैं कैंडिडेट बनूंगा, और दिखाते हैं कि हम लोग कैसा प्ले करते हैं। जैसे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड आता है, एक और कॉल करते हैं, तुम मुझे कॉल करो, आई शुड बी you be interview, I'll be the candidate. Oh, HR. Oh. Okay. Hey, hi Aslam. पहले फोन तो बजाओ, अरे ट्रिंग यार। ट्रिंग तो बोलो। अरे ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, Hey, hi Aslam. yeah, hi, who's this? This is Saurav from Infosys. Okay. Yeah, I am HR manager from here. I got your profile from Naukri.com. Are you looking for change? Yes, I'm looking for the job change. Okay, so we have one vacancy for the business analyst for like 13 years of experience. So I just wanted to know like what are your experience currently? Currently, I'm having 13 years experience in business analyst. Anything you would like to know about this? Yeah, like what are your roles and responsibilities in this? My roles and responsibilities being a BA is I like gather the requirements and analyze the requirements, and I document the requirements and I present the requirements, and the person who take complete care of requirements actually from the gathering point to the deployment part. Oh, great. So what is your notice period? I can see like you are serving notice period right now and you have 15 days only. Yes, I'm immediate join. If you want the moment you release the offer letter, I'll join it. What is the reason like of change? Actually, the project which I'm working is currently on hold. So, we are just doing the maintenance part actually. So, unless and when the other project comes, my team is ready to relieve me. So, if you are doing late, I may get another project and I may get occupied. So, it's better you schedule the interview as soon as possible. Okay, then it's good. Like when we can schedule? That's what I said. No, the moment you are ready, you please schedule the call. I'm ready. I'm ready for all the interviews. So what is your current package? That is very hard to say on this call. Right now it is XYZ package, and I'm not expecting high. I'm expecting as per the company standards. Okay, company standards. Okay, then that's I think good. at least company standards, that means at least they can afford me. Okay, sure. Okay, I will just check with my hiring manager. If it will be shortlisted, then we will get back to you, Aslam. Yeah. Thank you so much for your call. Yeah. Thanks, Saurabh. Thank you. Yeah. And guys, I'm having 3 months notice period, guys. I just lied to the HR because I want the interview to be scheduled first. Let us the interview get scheduled. Let us crack the job. Let's crack the interview first. Then later at that point of time we can say it. See, first round, second round, HR round, by the time we complete, we'll be having ample amount of time. That if you're feeling that everything is going correct and right, and you feel that you're getting selected, definitely HR will wait for you. And I have one more point, Aslam. Yep. ठीक है. So like I used to create 2 Naukri profiles. ठीक है. Okay. कि हाँ, तो एक उन locations के लिए for which I don't want to give interview. Okay. जैसे I don't want to go like दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, something. Okay. जहाँ पे भी IT market अच्छा है. ठीक है. नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव. And एक अपना बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, where I want to go. ठीक है. So what happens like I keep 2 numbers, right? And from where they are calling. So if they are calling, first I only ask the HR कि भाई from which location you are calling. Okay, so they say Bangalore. So I will say कि भाई हाँ, okay, Bangalore. I am comfortable with Bangalore. And if they will be like कि you are in Hyderabad, then how you will come Bangalore? If you are in Pune, how you will? तो ये एक चीज होता है जहाँ पे तुमको भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि you will be like relocate. ठीक है. So you can say like what I can say like my brother lives in Bangalore only. Okay. He's working in Deloitte and it's easy for me to relocate and all. I don't mind. ऐसा करके मैं थोड़ा करने के बाद होता है. अब कुछ लोग होते हैं कि जिनको अगर पूछे कि अब आप रिलोकेट करोगे क्या, वहीं पे वो थोड़ा कॉल, अगर एचआर के बाद भी शॉर्टलिस्ट होना भी बड़ी बात होती है, राइट? वो वहीं पे कट कर देगी, भाई ये तो इतना दूर रह रहा है. यू हैव टू प्रूव कि भाई हाँ आई कैन रिलोकेट और समथिंग. Exactly. So first of all, you have to get that opportunity first. Like getting hired and getting placed is the last thing. First of all, get the interview schedule. Yeah. At least you'll come to know where are we in the market.
Yeah, obviously. because the things, how the things are changing, the new tools are coming up in the market, many new things are happening. At least to analyze, sometimes we know, no, whenever we're trying to work in the project, for example, I'm having 13 years experience, I'm having, I feel that I'm top of the my game and I'm playing very well, I'm on the safe position and all. But if I'm not, even sometimes I might not be improving myself because of my project deliverables or something, I might be occupied. But to in order to know whether I'm I'm on top of the game or whether I'm really safe or not, sometimes I have to give the interview, then only you'll come to know your potential. Until unless you give interview, you will not get to know like you are on the correct path Correct or not. path or Whatever not. you are studying, whatever the course you are doing, is it correct or not? इंटरव्यू दोगे पता लगेगा हम कितने हाँ, पानी में, राइट? एग्जैक्टली, फिर उसको इम्प्रूव करोगे. बहुत वो वाले चीज़ें रहते हैं. एंड nowadays लोग क्या करते हैं पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे विल डू, दे विल पिक अप द रैंडम कोर्सेज. Okay, they'll pick up the random courses, they'll look at the YouTube, पता चला 10 घंटे का कोर्स है, 10 hours course, they go on doing that course and all 10 hours, and based on the 10 hours course, they'll think that they'll crack the interview and job. Is it really possible like that? It's not possible. See, you have to be like know like what is the correct channel you are watching, what are see basic YouTube पे 10 घंटे में अगर कोई होता है ना कि like 2 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 3 दिन में ये सिखा देंगे, वो Exactly. वो होता तो आज सबको सब कुछ हो जाता, सबको जॉब मिल जाती है. हाँ, 3 महीने में आपको आईटी की गारंटी दें, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू लाइक चूज द राइट पाथ. बहुत सारी चीज़ें होती है. अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहाँ पे पहले देखो फैकल्टीज क्या कर रही है, सब क्या कर रहे हैं, ठीक है. अब रैंडम कोर्सेज ऑन यूट्यूब विल जस्ट गिव यू द बेसिक नॉलेज, ठीक है. यू शुड नो लाइक क्या कॉम्प्लेक्स सिनारियोज यू कैन गेट इन द कंपनीज एंड ऑल, ठीक है. सो गो फॉर लाइक गुड लाइक इंस्टीट्यूट, Udemy courses or something. Check the experience of the tutor who is teaching you, who should tell you like what kind of questions can be asked in the interview also, right? These all things are very necessary to choose the right thing. अगर ऐसे हजारों कोर्सेज पड़े हुए यूट्यूब पे, अगर आप कुछ भी उठा के पढ़ोगे तो फिर कल बोलोगे कि कुछ काम का नहीं है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट हैदराबाद इज अ लैंड ऑफ वेर इज मेनी ट्रेनिंग कोर्सेज आर देयर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हायरिंग विच इज़ देयर, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम फ्यू प्लेसेज एज वी नो द लैंड ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज एंड ऑल, where thousands of people will be joining and few people getting placed. For example, if you might be thinking that 100 students got placed, but 100 students got placed out of how many? That is very much important then and all. So if you really come, there are, see, not all courses are meant for for all the institutes. Obviously. Few institutes are doing well and good at few things. For example, if you're talking about SIT, Switch to IT, which we are talking about, this institute, see, this institute from past 4 to 5 years, it is concentrating mostly on the business analyst. And they have the hold on the project management as well, but they have excelled a lot in business analyst and even project management. They are doing well. Why they are doing well? Because they have come up with many research, many ups and downs. They have changed the course, they have changed everything. Lot of planning has been done in this. The moment you come, when the people are taking this course, we are able to see the results immediately. The 4 years of time the course has been changed, the way of teaching and everything which has been so structurally aligned, it is really helping the trainees a lot. Even for example, the teacher, the trainee who comes, when you look at the course, he is also able to connect the dots. We'll able to see that, okay, these are very much really important. We are cutting down all the unnecessary things where other branding is going for other other courses and all. They'll be having 10 list of courses actually. ये भी सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे. A big list of things will be there. No, we are avoiding everything because why to teach them unnecessary all the skill set? Obviously. It's not that we don't want to teach. And what market needs, we should teach that. Exactly. Okay. What market need, what is the right skill set, we are teaching that. Correct. Instead of keeping 10 things and out of that you're getting nothing, keep 5 things and make them sure they are fitting into the market, and that has been teach very properly. Correct. So that is the reason which I like here. It's not about we are training here, that is the reason we're seeing it. Our students, if you go and check our Google reviews actually, most of the students will have the positive impact on us. Oh. It's always a positive place which we feel because our founder Santosh, who is he's always he's a man of vision and mission actually. I always say, because since the day when I have seen his work and his what we say, his collaboration with the students, his coordination, each and everything, he always worried about the people. He want to say the people who are coming to pay here the institute and all, each and every penny must be what we say,
सेटिस्फाइड फॉर देम, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पेनी। तो उसका हम लग 1 रुपया भी ले रहे हैं तो उसका भरपूर करना चाहिए हम लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन। तो अगर कोई स्टूडेंट पे कर रहा है, ही विल मेक श्योर दैट ही इज़ गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर ट्रेनर अच्छा नहीं लगा, डेफिनेटली दूसरा ट्रेनर में लाया जाएगा। इंटरव्यू है तो ही विल मेक ऑल द पॉसिबल थिंग्स टू गेट अरेंज फॉर यू एंड ऑल। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अब बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना, एक बार पैसा ले लिया आ गया तो हो जाता है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, इट्स नॉट ए जॉब प्लेसमेंट कंपनी, बट द अमाउंट ऑफ पुश, द अमाउंट ऑफ फीडबैक, द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन तुमको यहाँ मिलता है ना, आई नेवर सीन इन अदर इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली। दिस इज़ वॉट आई रियली लाइक एंड पीपल आर या प्रोफेशनली ट्रेन। ऐसा नहीं जो ट्रेनिंग करने वाले होते दे ओनली मेंट फॉर टीचिंग के जैसा नहीं, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर अप टू द डेट, दे नो द मार्केट, दे नो द इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, दे नो द इंटरव्यूअर स्ट्रैटेजी, बिकॉज एज ए बीइंग वर्किंग एज इन सेम प्रोफेशन वी नो what is currently going in the market and what sort of questions need to be asked, what exactly they are looking for and all. The same way the course has been taught. obviously The same way the course has been taught and we are training in such a way that tomorrow our trainees should be able to crack the job. This is our motto actually. So this is the reason, that is the reason guys, when you are selecting the institute, please be careful. Try research about the institute, talk to the people, go to the Google reviews, talk to the people who are working there. You'll try to get the insights. Once you get the comfortable, once you get to trying to understand the course is for you, then only please get enrolled in the course and start your career. It's never too late guys. and even SIT is for BA, right? Exactly. And even yeah, like even most of the people ask me like what you will do after, like कब तक रहोगे like SDET, QA ये सब चीज़ों में। तो I can see BA as a good path after like 2-3 years। ठीक है, बहुत हो गया, like एक टाइम पे ऐसा हो गया कि हाँ चलो अब थोड़ा चेंज करना है करियर पाथ। उसके आगे BA is booming so much, तो I am also planning to shift into BA, so that is also because like see अभी कोडिंग अब थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक है, जो टूल्स पे कर रहे हैं एक टाइम। अब इसके बाद होगा कि भाई मैनेजर लाइक लेवल पे पहुंचे या समथिंग, तो बीए ऐसा होता है कि जहाँ पे वी शुड नॉट हैव एनी कोडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, जहाँ पे वी जस्ट हैव टू लाइक टेक द रिक्वायरमेंट और समथिंग। सो मेरा वो भी है कि बिकॉज आई लव टू टॉक विद क्लाइंट्स, getting requirement, understand their things about the product and all. So yeah, I think BA is also good for the QAs also. Like I have seen many QAs are turning into BA nowadays. When I was in Deloitte, many QAs like internally shifted to BAs. Yes. So it's good for the career path. Reposting भी होता है। अगर मैं पूछूंगा what are the 3 things which you should not discuss outside regarding the office, so what will be 3 things, Saurabh? Outside regarding the office? Yes. Which I'm asking outside in the office again. That is a different thing. That we will discuss in office. अच्छा, outside regarding the office we can't discuss. Yeah. There are 3 things if I'm asking that we should not discuss outside. So what will be those 3 things of the office? बोलो कि जैसे कुछ भी जनरल about your managers or like your work culture. Obviously. देखो, कभी भी मैनेजर की तारीफ ही करते रहो, ठीक है, तारीफ ही करते रहो। ऐसा होता है कि चाय और बाहर चाय वाय के लिए निकलते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे यार, मैनेजर के सामने बड़े प्यारे, हाय सर, हाउ आर यू सर, मुझसे नहीं होता, हाउ आर यू सर, ऐसा वैसा सब, चलो ऐसा, और बाहर चाय की टपरी पे, अरे वो तो देखो वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हिटलर पता नहीं नाम, तो ऐसा है, ठीक है। तो या द 3 थिंग्स इज लाइक, मैं बोल रहा हूँ जो भी है मैनेजर की तारीफें करते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ फूड लीकिंग वाला नहीं है, जस्ट ठीक है सबसे अच्छे रहो। दूसरा है कि यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट द इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी चल रहा है चलने दो, उससे माइंड नेगेटिव ही होता है, ज़्यादा अपने करने का नहीं कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मेरे को मदद नहीं की, ये सब चीज़ें चलती रहती है। थर्ड पॉइंट अगर कुछ पूछो तो सैलरी अगर बता दो, अगर उसकी ज़्यादा होती तो अगले दिन हमको नींद नहीं आती, ठीक है, ऐसा अगर पता लग गया ना इस बंदे की सैलरी ज़्यादा है, भाई ऐसा हुआ था। तो मेरा एक पिछली कंपनी का एक चीज़ है जहाँ पे सैलरी पता लग गई एक को, बंदे को, भाई एक्सेल शीट पता नहीं गलती से शेयर हो गया था चीज़ें, तो उसको पता लग गई, अब उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरी तेरे से कम है, तेरी मेरे से ज़्यादा, ये सब चीज़ों में उसने पूरी अभी तक जान ही खा रखी है। तो कभी भी पैसा भी देना होता है चाहेगा, भाई तेरी सैलरी ज़्यादा है, तेरा वो ज़्यादा है, तेरा ये ज़्यादा है, पैकेज ज़्यादा, तो यही चलता, तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करने का। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू थिंक दैट लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैव टू कीप अप टू अस, सो बेसिकली यू शुड नॉट डू द सैलरी नेगोशिएशन एंड व्हाट वी से, कीप द थिंग्स अप टू
अप टू यू, Obviously. ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं Obviously. है। ओके मैंने ऐसा सुना है लाइक अभी लोग है ना बुराई करते हैं, ठीक है, अपने सामने मैनेजर की, ठीक है, ताकि वो अपने से निकला दे, और बाद में वही मैनेजर को जाके बोलते हैं हाँ इसने ये बोला था वो, तो ऐसा सब चीज़ होता है। तो थोड़ा कॉशियस रहना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल, यही है। एग्जैक्टली गॉट इट। और ये रिसेशन का क्या चक्कर है? ले ऑफ्स, हाँ ले ऑफ्स का भी यही पूछते रहते हैं भाई, ले ऑफ हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं भाई। इन्फोसिस ने निकाला, माइक्रोसॉफ्ट तक निकाल रही है, सब चीज़ें निकाल रही है। देखो यार ये सब चीज़ें चलती है, हर इंडस्ट्री में चल रही है, ऐसा नहीं कि अपनी आईटी में ही है, बट या वही है, अपने आप को स्किल सेट्स, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो। देखो आपको ऐसा होना चाहिए, कल मेरा ले ऑफ हुआ था, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक कंफर्ट लाइफ में नहीं रहना है कि भाई अगर ले ऑफ हो गया तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कॉल्स नहीं आएंगे। आपको कॉल्स सब आएंगे, बट हाँ आप उन इंटरव्यूज को क्लियर कर सको, उतना अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, उतना स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं भी ले ऑफ हुआ एक स्टार्टअप में करता था काम, हमको एक दिन 15 दिन पहले मैसेज आता है कि भाई योर लास्ट डे विल बी अप्रैल 30, और मेरा उस दिन था अप्रैल 15। खुश था भाई, प्लान बना रखे थे, ये सब चीज़ें, अब आगे के टिकट सब बुक थे चीज़ें। अब ऐसा कभी भी मैसेज आता है, बट उस टाइम मेरे को सब चीज़ें क्लियर थी, मैंने सब पढ़ रखा था। अभी 15 डेज बचा हुआ था, फिर 15 डेज में मैंने पढ़ाई की, और फिर एक हफ्ते में मेरे को फिर दूसरा जॉब मिल गया था। तो ऐसा है कि यार ले ऑफ इज अ पार्ट ऑफ आईटी, ठीक है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, तो वैसे कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है। कंपनी को कभी भगवान नहीं मानेगा। वट एवर यू आर डूइंग उसको अच्छे से करो, दैट्स द थिंग। उसमें कितना सीख पा रहे हो, ठीक है। कंपनी तो आज है कल नहीं, उनको चाहिए तो आज ही निकाल दे जब काम आपकी जरूरत नहीं। तो यू शुड जस्ट स्किल अप योर सेल्फ, जो भी पढ़ रहे हो उसको रोज 1 घंटा पढ़ाई करो या कुछ भी दो, अच्छा इंस्टीट्यूट चुनो, अच्छा करियर पाथ चुनो, जो भी चीज़ें जस्ट डू एंड गिव योर 100%, दैट्स द फंडा। मैंने सुना है कि तुम लिंक्डइन में बहुत फेमस हो एक्चुअली, तो बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करते रहते, वायरल भी होते हैं, बहुत सारे कंटेंट वायरल होते हैं। तो क्या है इसका पीछे का लॉजिक, मतलब अपडेट करने के लिए क्या हम लोगों को कैसा ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे कैसा रहना चाहिए? LinkedIn is very necessary nowadays. Like even like when I used to get the interview call, they used to check my profile, even giving आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो विश्वास नहीं करते भाई आपकी LinkedIn प्रोफाइल है। Then I used to give LinkedIn profile. Then only they used to get like हाँ भाई बंदा genuine है something. And I used to get, see, LinkedIn is something, yeah, why you are spending time on Instagram and all these things, right? People are spending their time on Instagram and all these things. थोड़ा आधा घंटा they should give for LinkedIn also. Like when you are into like professional and all these things, you should keep update your LinkedIn. Like whatever the things you are learning, yeah, whatever the things about your domain, you should put whatever your knowledge is something, ठीक है। तो मैं वही करता था, चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी, मैं ये चीज़ सीखता था, आज वह डाल दिया, ताकि एक स्टोरेज भी रहता था कि मैं आज ये सीख रहा हूँ, मैं डालता था, लोगों को शेयर करता था, आज मैंने ये सीखा। तो एक जब इन्फॉर्मेशन यू शेयर विद समवन तो वो रीपोस्ट करते रहते, तो ऐसे करके वायरल चीज़ें होती रहती। तो वही है, एंड लिंक्डइन इज़ वेरी गुड फॉर मी। लाइक आज तक मेरी जो भी जॉब लगी है वो मेरे को लिंक्डइन से ही लगी है। आई यूज्ड टू गेट मैसेज फ्रॉम HR कि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, कैन वी हैव इंटरव्यू, डायरेक्ट TCS, इन सब से मैसेजेस आते थे मेरे को। सो या लिंक्डइन इज़ लाइक मेरे लिए तो बहुत काम किया, इवन विदाउट प्रीमियम। लोग प्रीमियम ले लेते हैं कि भाई लिंक्डइन का प्रीमियम ले लूँगा तो ये होगा, नौकरी का प्रीमियम ले लूँगा। मैंने कभी नौकरी का प्रीमियम नहीं लिया, ये सब चीज़ें नहीं किया, फिर भी चीज़ें होती रहती है। जस्ट यू हैव टू बी एक्टिव, वट एवर लाइक यू आर थिंग्स डूइंग। आप इंस्टाग्राम को टाइम देते थोड़ा बहुत, तो लिंक्डइन को देना चाहिए। So basically when you are trying to learn something, I know, because see nowadays what happen, I know there is nothing new to develop in many of the fields, is something, but sometimes what happen, there is a sort of revision. Yeah. Because basically if you see, everyone, if you're coming for a healthy diet, for example, healthy diet is there. So everyone know sugar is bad for health and junk food is bad for health and so on, so bad for health. But sometimes anyway, if you go for some juice shops and all, if every juice or something, they'll add that this gives these proteins, this gives these vitamins will be there. Everyone start reading it. It is like sort of revision, everything. So the same way, even though we all know about our fields and courses and all, if some basic information are put on the LinkedIn post or something, people start reading it. It's like sort of revision. It's not like about you're posting the thing very basic or very high level advanced it or not. You're trying to learn something that which have been shared. Okay, so at least a revision for people and for you as Obviously. well. It will come to know, okay, you are going और आजकल वो लिंक्डइन को लोगों ने इंस्टाग्राम बना रखा है। लोग अपना Exactly. इधर जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, वो फोटो अपलोड कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मैंने इंस्टाग्राम इसलिए छोड़ा कि मैं लोगों को देखूं नहीं कि भाई ये मालदीव्स घूम रहा है, इधर घूम रहा है। अब लिंक्डइन पे वो चालू हो गया। अभी लोगों को समझना चाहिए लिंक्डइन इज प्रोफेशनल। एग्जैक्टली वो चीज हो गया। बना ही देते हैं लोग, टिंडर, लिंक्डइन सब
सब चीज़ें छोड़ते नहीं है। कि आपको क्या लगता है कि 30 लाइक कि जो शिफ्टिंग का जो करियर है नॉन IT टू IT कि इसको कोई एज लिमिट है, लगता है कि 30 इयर्स हो गए, 30 प्लस हो गया, बंदे की शादी हो गई, देन ही फ्रॉम नॉन IT ही नॉट एबल टू कम टू IT समथिंग लाइक? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लाइक आई हैव मेनी एग्जांपल, लाइक आई गेट मेनी एग्जांपल फ्रॉम लिंक्डइन आल्सो, लाइक एंड इवन आई टीच इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, देयर आर 30 प्लस गाइस, ठीक है। तो क्या होता है, देखो आपको कोई ये नहीं पूछेगा जब कॉल करेगा HR कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, 35 है रिजेक्टेड, 30 है 32 है रिजेक्टेड, ऐसा नहीं हुआ भाई, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पहला सवाल ये होता है। कभी भी एज नहीं पूछते, ठीक है। तो वो एक ये एक और मैथ अपन ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई ये भी है कि लोगों को लगता है 35 30 प्लस हो गया तो अब नहीं हो सकता चीजें, ऐसा नहीं है। सो यही है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स, what are your skill sets, that matters, age is just a number, you can crack your interview at 40 also, anything, just वो skill sets होनी चाहिए, right? ऐसा है वैसा। So guys, it was really nice session with you, Saurav. You know, Thank it you has so really much. had a very fun, and at least I think people will learn a lot from it. You know, while discussing with you, I think by this time, I think audience will analyze. You know, skill set is more important than any other thing else. As you have mentioned, you came from filmography, the passion out of it. See, passion is one thing which you are doing for our thing, but there are some creative fields out there which, for example, no. जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, द बेसिक नेसेसिटीज टू गेट द थिंग्स, सो जॉब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर पैशन इतना एक्सेल हो गया है देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो यार IT में नहीं होता, आपसे भी नहीं मिलता। एग्जैक्टली, IT में नहीं होता। सो एक IT एक ऐसे फील्ड है जो पीपल कैन हैव देयर लाइफ पीसफुली, दे कैन डू व्हाट दे वांट, एंड एज वेल एज द वॉट एवर द पैशन विच इज देयर दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद दैट. So I think people will learn a lot from this podcast. They'll come to know all the topics which you have discussed today, especially regarding recession, regarding the AI, regarding the joining, many lot of things. Really, it's nice to meet you, Sure. sir. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye. Yeah.